Welcome in the next video of class 9th, science chapter number 2 is matter around us pure. So in previous chapter 1 matter in our surrounding, we have studied about the physical nature of matter, particles property, physical state of matter like solid, liquid, gas, plasma and DEC. But now in this chapter we will be studying about matter's chemical composition. So how does the matter chemically composed of, what are the various parts or various types of the chemical composition of matter, and further some detailing procedure about method of separation. So here is the chapter at a glance. Chapter number 2 is matter around us pure. So matter chemically composed of, matter can be pure and matter can be made up of mixture. So in further, pure substance can be of elements and pure substance can be composed of compound. In elements we will study symbols in chapter number 3, and in compound we will study law of constant proportion, law of conservation of mass, and some other law also in chapter number 3. And chemically matter can be mixtures. So further mixtures types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. And in heterogeneous mixture we will be studying of method of separation. So how can we separate the components of a mixture in heterogeneous mixture? So let's continue the topic with the starting from the chemical composition. What are the pure substances, what are the mixture and their classification, so on. Now further classification of chemical composition में हमने पढ़ा that chemically matter is composed of can be pure substance or the mixture. Now there are two words, pure and substances. So first one by one we learn about them. What is the pure means in the scientific language and what is the meaning of substance. So here we can, pure words mean that there is no mixing in a substance. So यहाँ पे आप कह सकते हैं no mixing in substance. तो यहाँ पर वर्ड आ जाता है substance. तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि what is the meaning of a substance. But as we all know, according to the scientific language, all things are mixture of so many substances, not a single one that is very are not pure. Example like milk and water, they are all a mixture of something. So pure substance means that all the elements have same chemical properties. यहाँ पर हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस आर दोस दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. यानी कि सब्सटेंस जिन चीज़ों से मिलकर के बना है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सभी की एक समान या सेम होनी चाहिए. अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट. तो हैव सेम एलिमेंट, और यहाँ पे आप कहेंगे प्योर सब्सटेंस made up of same kind of element. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि what is the meaning of pure? So pure substance means that all the elements have same chemical properties and a pure substance is made up of same kind of element. अब यहाँ पे बार बार वर्ड आ रहा है आपका सब्सटेंस. तो सब्सटेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो a substance is a kind of, यहाँ पे अपन सिंपली कह रहे हैं substance is a kind of matter that cannot be separated, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू other kind of matter by any physical process. A pure substance is made up of the same kind of the element. ये अपन पहले भी बता चुके हैं. तो सिंपली हमने यहाँ क्या कहा है कि सब्सटेंस एक ऐसा मैटर है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी और फिजिकल मैटर में किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू. तो सिंपली डिफाइन
प्योर सब्सटेंस, तो यहाँ पे अपन ने कहा प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। और सब्सटेंस के लिए अपन ने क्या कहा कि अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू other kind of matter via any physical process. A pure substance is made up of some same kind of element. तो यहाँ पे हमने दोनों प्योर सब्सटेंस और सब्सटेंस दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। नाउ केमिकली हमने देखा कि मैटर टू टाइप्स का था, प्योर और मिक्सचर। नाउ हम देखेंगे कि व्हाट इज अ मिक्सचर, उसके सब टाइप्स क्या हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अब हम सेकंड टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर। सो नॉर्मली हमने कहा कि नेचर में जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस हैं वो आपकी किस फॉर्म में आपको मिलते हैं, मिक्सचर के फॉर्म में। तो पहले डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मिक्सचर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, या वो एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड। हमने क्या कहा कि मिक्सचर में क्या है, कंपाउंड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, मिक्सचर वो सब्सटेंस है जिसमें कि टू और मोर सब्सटेंस, अब इन सब्सटेंस में वो चाहे तो एलिमेंट्स हो सकते हैं और या फिर वो किसी तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रही है कि अ सब्सटेंस mixture is a substance in which two or more substance, element or compound are simply mixed together in a proportion। तो ये किसी भी टाइप का कोई एलिमेंट या कंपाउंड किसी एक प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका मिक्सचर। हम क्या कह रहे हैं कि मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मौजूद हैं, और वो सब्सटेंस के फॉर्म में क्या हो सकते हैं, या तो वो सब्सटेंस एलिमेंट हो सकते हैं या फिर वो सब्सटेंस आपके कंपाउंड हो सकते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स होकर के एक प्रोपोर्शन में क्या बनाते हैं, मिक्सचर। अब वो जैसे कि फॉर एग्जांपल द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज, जैसे अपन जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि जलवाष्प आपकी एयर में मौजूद हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू और मोर सब्सटेंस प्रोपोर्शन में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक तरह का मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या कहा, एयर। अब एयर में क्या क्या मौजूद है, हमने कहा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, आर्गन है और सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, अब वो सब्सटेंस या तो किसी तरीके के एलिमेंट हो सकते हैं या फिर किसी तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं। तो या तो एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में एक प्रोपोर्शन में मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका मिक्सचर। नाउ अब ये जो मिक्सचर आगे हैं वो फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं टू पार्ट में, जैसे कि या तो ये हो सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या ये हो सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक एक करके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में थोड़ा अपन डिटेल में देखते हैं एग्जाम्पल के साथ और इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। Now mixture can be further divided as we know that homogeneous and heterogeneous. So homogeneous mixture क्या है, हमें आप definition देखें। So homogeneous mixture, it has no visible boundaries of separation between the various constituents, so they called homogeneous mixture। हम सिंपली ये बोल रहे हैं कि homogeneous mixture जिन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है वो आप उनके बीच में कोई एक सेपरेट बाउंड्री नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो आपके होमोजीनियस कैटेगरी के अंडर क्लासिफाइड हो जाते हैं। एग्जांपल से समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, जैसे कि हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, कि जैसे आप शुगर को वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व करने के बाद जब उसे देखते हैं तो यू कांट आइडेंटिफाई बिटवीन कि कहाँ पर शुगर है और कहाँ पर वाटर मौजूद है। जो एक मिक्सचर बनता है वो हमेशा कैसा रहता है, थ्रू आउट द यूनिफॉर्म रहता है उसके मास में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। तो सिंपली आप कह रहे हैं कि ऐसे मिक्सचर जिसमें यू कांट सेपरेट द बाउंड्रीज बिटवीन द कंपोनेंट, जिससे मिलकर के वो आपके मिक्सचर बने हुए हैं। सो इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, सो दे कॉल्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जैसे आप कह सकते हैं शुगर इन वाटर and salt in water and many other examples are there for homogeneous mixture।
वही अपन बात करें हेट्रोजीनियस की, तो जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए डेफिनेशन का। क्या कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूट। तो हेट्रोजीनियस में क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट के बीच में आपके क्या कहेंगे हम, विजिबल बाउंड्रीज है, यानी कि यू कैन आइडेंटिफाई बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस में अपन डेफिनेशन की क्या बात कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूट। एक एग्जांपल से अपन आगे समझेंगे कैसे हेट्रोजीनियस होमोजीनियस से थोड़ा डिफरेंट है। नाउ हेट्रोजीनियस में हमने क्या कहा कि द कंपोनेंट्स ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द देयर पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर अपन एग्जांपल देखें जैसे कि मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। तो शुगर और सैंड यानी कि रेत को आप मिलाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिक्सचर में कहाँ शुगर मौजूद है प्रेजेंट है एंड कहाँ पर आपका सैंड प्रेजेंट है। सो इट डज नॉट, यहाँ पर अपन एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। सो इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, यानी कि जो भी मास होगा उस मिक्सचर का आप उसमें आसानी से उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि अपन कहें कि लाइक चॉक पाउडर और आपका ग्रेवल का मिक्सचर कह लें, या किसी ऐसे कंपोनेंट जैसे कि आपके लाइक चॉक पाउडर कह लें और सैंड का मिक्सचर कह लें, तो इसमें आप उसके कंपोनेंट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस उसमें कोई भी यूनिफॉर्म मास मौजूद नहीं होता है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देयर कंपोनेंट। सो ये अपन ने देखा कि कैसे मिक्सचर है जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस टाइप का हो सकता है। नाउ फर्दर कुछ अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उनमें आपके एग्जांपल हो जाते हैं सबसे कॉमन सॉल्यूशंस, और हेट्रोजीनियस में आपके कुछ एग्जांपल हो जाते हैं जैसे कि कोलॉइड और सस्पेंशन। तो होमोजीनियस में आपके हो जाते हैं सॉल्यूशन और कोलॉइड, और हेट्रोजीनियस में कुछ हो जाते हैं सस्पेंशन। तो मिक्सचर के फर्दर अपन स्टडी में देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं। इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और इनके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात आती है सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन क्या है, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं मिक्सचर का ही एक टाइप है। सो सॉल्यूशन कैन बी होमोजीनियस हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं वहाँ पर। तो सॉल्यूशन जो एक तरह से मिक्सचर ही है, लेकिन उसको अपन मिक्सचर के अंडर सब क्लासीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक कंपाउंड कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट। नाउ सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर सब्सटेंस डिसॉल्व, कि जिस भी अपन मीडियम में किसी तरह के सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा उसमें, सॉल्यूट। और जिस सब्सटेंस में आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो सब्सटेंस यहाँ पर क्या कहलाएगा, सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व, तो सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन ले, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में, तो ये क्या बन गया, एक तरह का शुगर का सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या हो जाता है, नॉर्मली जो सब्सटेंस लो अमाउंट में मौजूद हो जाता है और जिसको अपन किसी मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, तो वो यहाँ पर शुगर आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्यूट क्या हो जाता है, सब्सटेंस डिसॉल्व, और सॉल्वेंट क्या है, सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज नाउ डिसॉल्विंग। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने देखा शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में शुगर किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को, नॉर्मली जो कम अमाउंट में अवेलेबल होता है, और वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को, नॉर्मली जो मोर अमाउंट में मौजूद हो जाता है। तो सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये अपन ने देख लिया। नाउ अब सॉल्यूशन के अपन सब टाइप देखेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप का है। जैसे कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन कैन बी ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो ये सॉल्यूशन जो है आपका तीन टाइप का हो सकता है, थ्री टाइप्स यहाँ पर अपन को आपको इस चैप्टर में देखने हैं, और एक एक करके अपन इनके कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, कैसे इनमें क्या क्या डिफरेंस हो जाते हैं, कैसे इसको अलग अलग अपन क्लासीफाई कर रहे हैं,
और विच फर्दर सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के फर्दर क्लासिफाई हमने किया है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड हियर इज द सस्पेंशन। तो एक एक करके इनके प्रॉपर्टीज को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे ताकि पढ़ने में आपको थोड़ा आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइज ऑफ द सॉल्यूट। हमने कहा कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, तो जैसा कि अपन देख सकते हैं कि ये सब्सटेंस ही है या मैटर कह लें, तो मैटर या सब्सटेंस अपन ने कहा कि पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। तो पार्टिकल का क्या होता है, डेफिनेटली सम साइज होता है। तो ये साइज के बेसिस पे ही हमने सॉल्यूशन को जो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज हैं उनके बेसिस पे ही हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि साइज ऑफ द जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो कैसा होता है, लेस देन 10⁻⁻9 मीटर, यानी पार्टिकल का साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप उनको नेकेड, सो पार्टिकल कांट सी विद द नेकेड आई और नॉट इवन वाया माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप हो चाहे नेकेड आई हो, ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल है वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, अपन कहते हैं मेजरमेंट लेस देन 10⁻⁻9 मीटर, से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए आप उनको देख नहीं सकते। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 10⁻⁹ से लेकर के -9 से लेकर के 10⁻⁻6 मीटर, जो एक रेंज होती है, इस रेंज के बीच में पार्टिकल का साइज होते हैं। अगेन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल भी इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, आप उनको नेकेड आई से सामान्यतः नहीं देख सकते, बट यू कैन बी, इट कैन बी विजिबल वाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बात करते हैं तीसरे सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन में हम कह रहे हैं कि पार्टिकल जो सॉल्यूट के हैं वो मोर देन 10⁻⁻6 मीटर के हो सकते हैं, और यहाँ पर आप समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू कैन बी सीन दिस पार्टिकल विद द नेकेड आई। तो एग्जांपल में आपको आगे जाके समझ में आएगा कैसे पार्टिकल के साइज इतना हो जाता है सस्पेंशन में कि आप उसको आसानी से देख पाते हैं समटाइम्स। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ प्रॉपर्टी, एक तो साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसके बाद विजिबिलिटी, फिर तीसरा देखते हैं कि जो हमने अभी प्रीवियस क्लासिफिकेशन पढ़ा था मिक्सचर का, कि होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है ये हमेशा कैसा होता है, होमोजीनियस। तो ट्रू सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आ जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर में। फिर बात करें कोलॉइडल की, तो कोलॉइडल देखने में आपको कैसा लगेगा कि ये होमोजीनियस है, लेकिन जो रियलिटी में होता क्या है, ये हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम कह रहे हैं कि सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस। देखने में आपको बाहर से लग सकता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन वास्तविकता में कैसा हो जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस। और सस्पेंशन जैसा कि आप डेफिनेटली बता सकते हैं कैसा हो जाता है, हेट्रोजीनियस। आसानी से आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में बाउंड्रीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर बात करें विजिबिलिटी की, देखने में आपको कैसे सॉल्यूशन लगेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन हमेशा आपका कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि थ्रू एंड थ्रू आप उसमें विजिबिलिटी आसानी से देख सकते हैं। फिर कोलॉइडल सब्सटेंस की बात करें, ये हो जाते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पार्शियल विजिबिलिटी, कभी आपको प्रॉपर्ली दिख पाएगा, कहीं प्रॉपर्ली दिख नहीं पाएगा, तो आप कह देते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और लास्टली सस्पेंशन कैसे हो जाते हैं, ओपेक। आप इसमें सस्पेंशन में थ्रू एंड थ्रू नहीं देख सकते, यानी कि एक जो आपकी विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी हिंडर हो जाएगी। तो ये अपन ने प्रॉपर्टीज देखी। इसके अलावा जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि ये प्रॉपरली अपने फॉर्म को मेंटेन रख पाते हैं या नहीं। फॉर्म मेंटेन रखना यानी कि अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है ये आपके स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि आसानी से अपने फॉर्म को मेजर करके रख सकते हैं। दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, यानी कि आप ट्रू सॉल्यूशन को बहुत समय तक अगर छोड़ दें तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो अपने मिक्स रहते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, यानी कि ये जो ट्रू सॉल्यूशन ये स्टेबल होता है। ऐसे ही कोलॉइडल भी आपके कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। और सस्पेंशन में आप कहेंगे ये कैसा हो जाता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल इसलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने चॉक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व किया, तो जब तक आप उसको स्टर करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, पार्टिकल आपके मिक्स्ड रहेंगे। और जैसे ही आपने उसको स्टडी करके छोड़ दिया तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि जो चॉक पाउडर के पार्टिकल हैं वो नीचे जाके आपके पॉट में जमा हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो इसलिए अपन कहेंगे सस्पेंशन किस कैटेगरी में जाता है, ये अनस्टेबल होता है। जो सॉलिड पार्टिकल है वो
सेटल अपॉन कीपिंग, यानी कि रखे रहने पर सॉलिड के पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, यानी नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। फिर एक लाइट इफेक्ट होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, कि टिंडल इफेक्ट क्या हो जाता है। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये इफेक्ट दिया था। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि टिंडल इफेक्ट जो है ट्रू सॉल्यूशन में आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हम बोलेंगे कि टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में, और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन में कभी कभी कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जब आपको दिखाई नहीं देता। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं यहाँ की, वो डिस्कस करते हैं और इनके फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं। सो फर्दर प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टी आ जाती है डिफ्यूजन, यानी कि एक मीडियम के थ्रू अगर सॉल्यूशन पास हो सकता है, यानी अकॉर्डिंगली अपन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में क्या कहते हैं कि डिफ्यूजेस थ्रू पार्चमेंट पेपर एंड फिल्टर पेपर। पार्चमेंट पेपर और फिल्टर पेपर इस तरह के एक मीडियम होते हैं जिसको अपन नॉर्मली सॉल्यूशन या ऐसे सब्सटेंसेस को प्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो पार्चमेंट पेपर हो चाहे फिल्टर पेपर हो, दोनों के ही थ्रू एंड थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं। बात करें कोलॉइडल्स की, तो कोलॉइडल नॉर्मली हम कहते हैं कि फिल्टर पेपर से तो ये आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पार्चमेंट पेपर से ये डिफ्यूज नहीं हो पाते, यानी थ्रू एंड थ्रू नहीं हो पाते। बात करें सस्पेंशन की, तो ना तो पार्चमेंट पेपर और ना ही फिल्टर पेपर, नाइदर विद द पार्चमेंट पेपर नॉर विद द फिल्टर पेपर दे कांट डिफ्यूज थ्रू एंड थ्रू। तो ये अपन ने कुछ मेजर प्रॉपर्टीज देखी यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की, और उनकी कंपैरेटिव स्टडी करी। इन पे क्वेश्चन बनता है समटाइम्स। और यहाँ पर अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, जैसे कि शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे कुछ जो मिक्सचर है वो आपके काम में जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन में। बात करें कोलॉइडल सब्सटेंस की, तो कोलॉइडल सब्सटेंस जैसे कि मिल्क है, फोम है, शेविंग क्रीम है, ब्लड है, ये सब किस कैटेगरी में जाते हैं आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन में। बात करें सस्पेंशन की, जैसे कि आपकी जो एसिडिटी के लिए समटाइम्स आप जो सिरप पीते हैं, या फिर आपका सैंड मड इन वाटर, रेत में वाटर में आपका रेत, सैंड या फिर मड के पार्टिकल घुले हुए होते हैं, तो वो आपका का एग्जाम्पल हो जाता है सस्पेंशन का। तो यहाँ पर अपन ने तीनों जो सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन, इनका अपन ने स्टडी किया, इनके इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज देखे, कुछ एग्जाम्पल देखे। नाउ आगे अपन थोड़ा सा कोलॉइडल क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे, और कोलॉइडल किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन एग्जांपल ऑफ द कोलॉइड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, वन ऑफ देम वाज सॉल्यूट एंड अदर इज ए सॉल्वेंट। तो यहाँ पर कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पर भी दो कंपोनेंट मौजूद हैं। तो पहला कंपोनेंट है आपका डिस्पर्सल फेज। तो जैसे सॉल्यूशन नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, वैसे ही कोलॉइड में यहाँ पर क्या मौजूद होता है, डिस्पर्सल फेज, जो नॉर्मली कम अमाउंट में मौजूद होता है। और जिस तरह से सॉल्यूशन में हमने देखा था कि सॉल्वेंट था, यहाँ पर उसको हम क्या देते हैं, डिस्पर्सल मीडियम, जो नॉर्मली ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मास में आपका अवेलेबल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सॉल्यूट या डिस्पर्सल फेज या डिस्पर्सल मीडियम, अलग अलग टाइप के आपके कोलॉइड्स हो जाते हैं, और उनके कुछ अपन यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि सपोज कम अमाउंट में, जैसे कि हमने कहा कि किसी टाइप का आपका लिक्विड है जो कि किसी गैस में डिसॉल्व किया गया है, तो इस तरह के आपके जो एरोसॉल हो जाएगा, इसको हम कहते हैं जैसे लिक्विड है, बहुत कम अमाउंट में है और बहुत ज़्यादा अमाउंट की गैस में हमने उसको क्या किया है, डिस्पर्स कर दिया है, तो इस तरह का कोलॉइड क्या कहलाता है, एरोसॉल। जैसे कि आपका फॉग हो जाता है या फिर आपके क्लाउड हो जाते हैं। फिर सपोज सॉलिड पार्टिकल्स हैं आपके जो कि गैस में सस्पेंड है, तो ये आपका सॉलिड एरोसॉल हो जाता है। जैसे कि आपका स्मोक, जो धुआं होता है, जो स्मोक, उसमें अपने छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स जो है आपके मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं, तो इस तरह का कहलाता है आपका सॉलिड एरोसॉल। और अगर सस्पेंडेड जो फेज है वो लिक्विड है, तो कहलाता है लिक्विड एरोसॉल। तो सॉलिड एरोसॉल और लिक्विड एरोसॉल
इसके अलावा अपन देखें जैसे कि बहुत कम अमाउंट में आपने गैस को लिक्विड में आपने डिसॉल्व कर दिया है, यानी कि लिक्विड ज़्यादा मात्रा में है, लार्ज अमाउंट में है और गैस बहुत ही कम है, तो इसको हम कह देते हैं यहाँ पर फोम। जैसे कि आपकी शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम को जब आप रब करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या रहता है, वहाँ पर लिक्विड रहता है, और जो अपन प्रोसेस के दौरान जो इन्वायरमेंटल एयर है वो उसमें ट्रैप हो जाती है। इस तरह से गैस कहाँ मौजूद रहती है, लिक्विड मीडियम में, तो क्या कहलाता है, टाइप ऑफ एरोसॉल हो जाता है फोम। फिर बात करेंगे अगर दोनों कंपोनेंट क्या हो, लिक्विड हो, ठीक है, फिर थोड़ा कम अमाउंट में लिक्विड लिया, थोड़े ज़्यादा अमाउंट में हमने लिक्विड को डिसॉल्व कर दिया, तो इस तरह का कोलाइड क्या हो जाता है आपका, इमल्शन कहलाता है। क्या कह देते हैं उसको, इमल्शन। इमल्शन जैसे कि आपका मिल्क हो जाता है और साथ में आपकी समटाइम्स फेस क्रीम। तो दो तरह के लिक्विड को इस तरह से अपन ब्लेंड करते हैं कि वो क्या बन जाते हैं, एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन, और क्या कहलाता है आपका इमल्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा मिल्क और फेस क्रीम, तो ये कुछ टाइप थे आपके कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल। कुछ और एग्जांपल है इसके बाद अपन वो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ और टाइप मौजूद है, जैसे कि सपोज जब आपका डिस्पर्सल फेज सॉलिड बहुत कम अमाउंट में अगर लिक्विड पे डिसॉल्व किया जाए तो उसको क्या कह देते हैं, सोल। जैसे कि आपका मड और डाइजीन हो जाता है। फिर गैस अगर बहुत कम अमाउंट में सॉलिड में डिसॉल्व हो, जैसे कि सॉलिड फोम हो जाती है, जैसे कि रबर और स्पॉन्ज। इसके अलावा जैसे कि लिक्विड सॉलिड में बहुत कम अमाउंट में मौजूद है, तो उसको हम जैसे आपके हेयर जेल हो जाते हैं, जेली, चीज़ वगैरह, ये आपके जेल में आ जाते हैं। और लास्ट सॉलिड सॉलिड, दोनों मीडियम अगर आपके सॉरी डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडियम आपके दोनों सॉलिड हो जाए तो उसको अपन क्या देते हैं, सॉलिड सोल। जैसे कि आपकी कलर्ड ग्लास हो जाते हैं और जेमस्टोन है, ये आपकी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। कभी भी देखेंगे आप हमेशा जो है गैस और गैस, ये दोनों कभी भी कोलॉइड नहीं बनाएंगे, उसको हम हमेशा क्या बोल देंगे, मिक्सचर कहलाएगा। दो गैस का कभी भी कोलॉइड पॉसिबल नहीं हो पाता, वो सिंपली क्या कहलाएगा, एक तरह का मिक्सचर कहलाएगा, उसको आप कोलॉइड की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जांपल थे कोलॉइड्स के, उनके टाइप देखे और उनके एग्जांपल देखे आपने, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं, जैसे कि आपने कुछ अमाउंट में शुगर लिया और कुछ अमाउंट में वाटर लिया, या फिर कुछ अमाउंट में आपने सॉल्ट या शुगर लिया और वाटर लिया, उनका एक सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन की अपन जो स्ट्रेंथ है कि सॉल्यूशन कैसा है, उसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए दो आपके यहाँ पे टर्म होते हैं, उनको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर दो टर्म है, मास बाय परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरीके से आप जो सॉल्यूशन के जो मेजरमेंट है उसको मेजर कर सकते हैं कि कैसे, कि जो भी मास ऑफ सॉल्यूट, सपोज आपने 5 ग्राम शुगर को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, जैसे 10 ग्राम शुगर को आपने 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 10%, और इसको अपन लिखेंगे मास बाय मास। तो मास परसेंटेज इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूट का मास उसको न्यूमिनेटर में रखते हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट को डिनोमिनेटर में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका परसेंटेज वाया मास आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मास बाय वॉल्यूम को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कि जो भी मास आपने सॉल्यूट का लिया है उसको आप डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 50 ग्राम शुगर को हमने 1000 ml सॉल्वेंट यानी कि जैसे वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5% वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज, इस तरीके से अपन दो टाइप से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। तो जो भी रीडिंग आपको दे सॉल्यूट के आप रीडिंग लें, सॉल्वेंट के रीडिंग लें और उसको इन फॉर्मूलाज में पुट करके आप उनके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो आगे के पार्ट में हम देखेंगे, इसी चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन हैं, हमने कहा कि उनको आप सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली,
और जो होमोजीनियस है उनको आसानी से आप सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो हेट्रोजीनियस जो सोल्यूशन में अपन किस टाइप से मेथड्स हैं कुछ जिनको अपन यूज़ करके मिक्सचर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको अपन अलग करने के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यहाँ पर देखेंगे। So thanks for watching today's video, and do like, share and subscribe our school's channel and study well.